गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ ओविक रॉय, योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल, and in this video just we are going to start a new chapter from the JEE main and advanced exams. Okay, and that is the area of any bounded region. Okay, area of any bounded region by using the definite integral. That means this is chapter is for the application of integration. That means integration chapter, you all have done the integration chapter as well. That means this integration chapter where this integration concept will be used. Okay, so that means the application of integration, okay, will be discussed in this chapter, area of any bounded region. Okay, so as I all know, so that this integration, okay, integration, two types of integrations are there: indefinite integrals and the definite integrals. Okay, indefinite integrals, actually this integration will be used as the anti-differentiation. That means a function fx will be given in your question, and this function will be differentiated with respect to x. I think there will be an answer. Okay, so if you use the anti-differentiation, that means the integration sign, okay, integration sign on that answer, the question will come back. Okay, so that's why this differentiation and this anti-differentiation, okay, differentiation, that means from car to answer. Okay, and if you want to actually come back to the question, then you have to use the anti-differentiation on the answer. आंसर के ऊपर आप anti-differentiation, that means integration यूज करेंगे with respect to x. यहाँ पर differentiation अगर आप with respect to x ले रहे हैं, इंटीग्रेशन भी, एंटी डिफरेंशिएशन भी आपको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही लेना है. तो अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंटी डिफरेंशिएशन लेंगे तो आप क्वेश्चन के ऊपर बैक करेंगे. ठीक है, तो ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल का एप्लीकेशन. और उसके बाद आ गया डेफिनिट इंटीग्रल. डेफिनिट इंटीग्रल यूज होता है जनरली किसी भी क्लोज्ड बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए. ठीक है, किसी भी क्लोज्ड बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए. कैसे ये एरिया निकाला जाता है, ये लिमिट सम प्रॉपर्टी में डिस्कस होगा. ठीक है, लिमिट सम प्रॉपर्टी जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लिमिट सम प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली. सो वी विल प्रिपेयर अनदर सेपरेट लेक्चर्स for the limit sum property. Okay, we will prepare tomorrow. So limit sum property, that means how can you find the area of any closed bounded region by using the integration? How is it possible? That means from where this concept came. That means this finding the area using this integration, using this definite integral. Okay, so we will discuss in another lecture. Okay, so here in this lecture we are going to discuss how to find the area of any closed bounded region by using the integration. Okay, so in the indefinite integral means कोई भी डेफिनिट नहीं है. यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी तुम चूज कर सकते हो मन में जो है. fx का वैल्यूज भी बहुत आ सकता है, इनडेफिनिट आ सकता है. दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ fx वैल्यूज आ सकता है यहाँ पर. ठीक है, बट डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, आपको जैसे फंक्शन में, ये तो सब फंक्शन का ही खेल है, fx का ही खेल है. फंक्शन में क्या होता है, एक इनपुट दिया जाता है, एक आउटपुट मिलेगा. एक इनपुट एक आउटपुट, है कि नहीं. सो इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, इनपुट का कोई लिमिटेशंस नहीं दिया जाता. आप मन में जो आए आप इनपुट यहां पर चूज कर सकते हैं. आउटपुट भी जो मर्जी वो आ सकता है. पर डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, आपको इनपुट चूज करने के लिए एक बाउंड्री दे दिया जाएगा. You will be given a boundary, one limitation actually. From this interval and from this boundary, you have to choose the input values. Okay, so if the input values are bounded, so obviously the output values will also be bounded. अगर इनपुट आपको लिमिटेड चूज करना है तो fx का वैल्यूज भी आपको लिमिटेड ही मिलेगा, है कि नहीं. तो जब fx का वैल्यूज ये लिमिटेड मिल जाएगा, तब fx ये जो कार्व होता है ना, कार्व क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है. कार्व को और तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ, देखो यहाँ पर थोड़ा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, सब्सक्राइब करना है, रेड कलर का बटन साइड में लिखा हुआ है, देखो उसमें क्लिक करना है. नोटिफिकेशन बेल को भी आपको दबाना है. फिर उसके बाद आपको अगर वीडियो लेक्चर से पसंद आ रहा है तो आपको ये लाइक बटन भी आपको क्लिक करना है. ठीक है ना.
नाउ सपोज ये एक फंक्शन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक फंक्शन होता है सपोज। तो अगर यहां पर ये फंक्शन में हजारों पॉइंट्स हैं, हजारों पॉइंट्स है ना, करोड़ों पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट में क्या होता है, किसका किसका कोऑर्डिनेट होता है, एक होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस है, वाई का कोऑर्डिनेट। यहां पर वाई मतलब क्या होता है, एफ एक्स होता है, वाई और एफ एक्स जो है एक ही बात होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, दैट मीन्स एक्स कोमा एफ एक्स, 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 ऐसे ऐसे करते करते हजारों पॉइंट्स आपको मिलेगा। एक्स का यहां पर इनडेफिनिट वैल्यूज आपको मिलेगा, इनपुट, ओके। सो आपको आउटपुट भी इनडेफिनिट ही मिलेगा। तो जितना आपको इनपुट जो है इंडेफिनिट वैल्यूज मिलेगा, आउटपुट भी इंडेफिनिट मिलेगा। दैट मीन्स ये कार जो है कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे आप चलता रहेगा, ऐसे भी चलता रहेगा, है कि नहीं। जब कोई भी लिमिटेशंस आपको दे दिया जाए, दैट मीन्स सपोज ये, ठीक है, ये सपोज x इक्वल्स टू a होता है, और ये होता है क्या, x इक्वल्स टू सपोज b, है कि नहीं। तो ये देखो, ये लिमिट दे दिया गया है, दैट मीन्स एक क्लोज्ड रीजन यहां पर बन गया। क्लोज्ड रीजन मतलब ये देखो, एक क्लोज्ड रीजन बन गया है। तो कोई भी चीज अगर क्लोज्ड हो, कोई भी कार्ब अगर क्लोज्ड हो, क्लोज होने से ही तो एरिया निकल जाता है कि नहीं। क्लोज नहीं हो तो एरिया भी नहीं निकल सकता है यहाँ पर, है क्लोज्ड है इसलिए तो यहाँ पर एरिया निकला। दैट मीन्स एरिया का डेफिनेशन क्या है, कोई भी चीज अगर कोई स्पेस लेके खड़ा है, उस स्पेस का जो क्वांटिटी है वही एरिया से निकाला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये कार्ब जो है कितने एरिया कवर करके खड़ा है, दैट मीन्स आपको एरिया निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाउंड्री एक्स का वैल्यूज ऐसे शुरू होगा, बी में जाके खत्म, है कि नहीं। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स इनपुट वैल्यूज का यहाँ पर एक लिमिटेशंस दे दिया गया है। दैट मीन्स ये पूरा एफ एक्स, ये कार्ब जो है एक बाउंडेड कार्ब बन गया है। अब बाउंडेड कार्ब बन गया है, दैट मीन्स यहाँ पर एक बाउंडेड रीजन भी बन गया है। बाउंडेड रीजन बन गया है, दैट मीन्स आप एरिया निकाल सकते हैं। कैसे एरिया निकाला जाता है, पॉइंट नंबर 1 दो, पॉइंट नंबर 1, इफ एफ एक्स पी any real valued function and fx is symmetrical about x एक्सिस। यहां पर दिखाई दे रहा है, देखो x का लिमिट दिया गया है, दैट मीन्स ये कार्व जो है और ये जो शेड किया गया है ना, वो शेड देखो x एक्सिस के साथ जो है वो चिपका हुआ है। दैट मीन्स जब भी कोई भी शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन x एक्सिस के साथ लगा हुआ रहता है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस आप बोल सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, देन द एरिया of fx on ऐसे on this interval, close interval a comma b, can be expressed as integration a to b fx dx। और fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a to b fx मतलब ही क्या होता है, y होता है, y dx। ऐसे अगर आप इसका आंसर निकाल लेंगे, दैट मीन्स इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। आप लोगों को सर ये करने से कैसे एरिया निकल जाता है, ये लिमिट सम प्रॉपर्टी में डिस्कस किया गया है। कैसे a to b fx dx जो है एक बाउंडेड रीजन का एरिया डिनोट करता है, ठीक है। ये हम लोग, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेडब्ल्यू मेन एडवांस का, आप लोगों को ये जो इंटीग्रेशन a to b fx dx कैसे उसको एरिया डिनोट किया जाता है, लिमिट सम प्रॉपर्टी यूज करके कैसे निकाला जाता है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और उसके ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है लिमिट सम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि सर लिमिट सम प्रॉपर्टी थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, हम लोग के लिए ये फायदा होगा, ठीक है। तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन a to b fx dx, इसका मतलब क्या होता है, ये क्लोज्ड बाउंडेड रीजन का fx कौन सा होता है, ये fx a to b, दैट मीन्स ये a और ये b, दैट मीन्स ऐसे शुरू होके b में खत्म।
तो ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये क्लोज्ड बाउंडेड रीजन का एरिया। ठीक है, अच्छा यहां पर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो ऐसा भी तो कुछ कार्व हो सकता है जो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो। जैसे सपोज ये एक कार्व है और सपोज ये होता है, ठीक है, तो यहां पर ये कार्व होता है, तो ये देखो यहां पर एक परपेंडिकुलर, ऐसे एक परपेंडिकुलर का ड्रॉ करें, तो इसमें y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b दिया गया है। दैट मीन्स ये होगा बाउंडेड पोर्शन। तो जब ये देखो शेडेड पोर्शन जो है y एक्सिस के साथ चिपका हुआ है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। और जब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है तब इसका एरिया जो होता है a टू b, यहां पर लिमिट किसका दिया गया है, y a एंड y इक्वल्स टू b। दैट मीन्स a टू b x dy, y के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, क्योंकि यहां पर y एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है, तो यहां पर x का कोई यहां पर नामो निशान नहीं है। दैट मीन्स आपको y के रेस्पेक्ट में यहां पर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। दैट मीन्स यहां पर पॉइंट नंबर 2 देके आप लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज रियल डेवलप्ड फंक्शन एंड सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। then can be expressed as f of y, ये dy हो जाएगा। एक काम करो, ये जो है f of y, तो इंटीग्रल अबाउट एक्स f of y dy, ठीक है। तो ये y में f of y मतलब क्या होता है, x होता है, x dy, ठीक है। जब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है तो आप कैसे समझेंगे, हाउ डू यू नो दैट दिस कार इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस? एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, whatever the question will be given in the question, then you have to draw the figure first. After getting the figure, you will get the idea that whether it is symmetrical about x axis or symmetrical about y axis or not. Okay, so after getting the idea about the actually this symmetrical property, you will use this integration a to b fx dx or integration a to b fy dy. Okay, so these are the two properties regarding the area bounded region. Okay, only these two properties. If you have the symmetrical about x axis, then integration a to b fx dx, and integration if the curve is symmetrical about the shaded portion, the bounded region is symmetrical about y axis, then fy dy will be the bounded region area. Okay, so in the limit sum property we will discuss this area part elaborately. If you have any confusion regarding this limit sum property, we will discuss, no problem. Okay, so now different types of functions and different types of questions curve may be given. Just you have to draw the curve, you have to consider the curve. Okay, and after that the area of that particular region should be found with respect to the x axis or with respect to the y axis. Okay, just remember one thing, you will draw the curve, no problem. So if you want to find the area with respect to x axis, okay, then the perpendicular should be drawn on x axis from the curve. If you want to calculate the area with respect to the y axis, तब आपको क्या करना है, तब आपको y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी थोड़ा लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, यहां पर जब शेडेड पोर्शन तुम निकालने के लिए जाओगे, सपोज शेडेड पोर्शन तुम निकालने के लिए गए, ठीक है, निकलने के बाद यहां पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों कार भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव वैल्यूज ही यहां पर मिलेगा एक्स और वाई का, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। रिमेंबर वन थिंग, जब आप एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल कोई कार्व है, शेडेड पोर्शन भी एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है, नो प्रॉब्लम, बट इस टाइप का फिगर भी तो हो सकता है ना, थोड़ा देखो उसको। सपोज फिगर थोड़ा ऐसा हुआ, सपोज फिगर जो है
ये कार्ब जो है, कार्ब सपोज ऐसा हुआ, सपोज ऐसा है, तो देखो ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ एक बाउंडेड पोर्शन। यहां पर एक लिमिट दिया जाएगा a टू b, है कि नहीं? तो यहां देखो ये एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ चला गया, दैट मीन्स निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चला गया। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस तो है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि शेडेड पोर्शन जो है एक्सिस के साथ लगा हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b y dx है, ये तो श्योर है। बट यहां पर देखो, यहां पर क्या, ये जो शेडेड पोर्शन जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर चला गया ना, देखो तो ये नीचे की तरफ आ गया, दैट मींस क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, नीचे है नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जब ये कोई भी आप सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देखेंगे कि जो शेडेड पोर्शन जो है वो क्या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो नो प्रॉब्लम, प्लस वाई dx होगा। बट whenever this shaded region will be in the negative part of y, नीचे की तरफ आ गया, that means आपको सामने एक माइनस साइन दे देना है, माइनस साइन दे देना है, याद रखना, ठीक है। ये तो गया एक प्रॉपर्टी, सो जस्ट आप ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद सपोज ऐसा है, सपोज ऐसा 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 कर, तो ये हो गया बाउंडेड पोर्शन, तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो यहां पर भी देखो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस तो है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहां पर देखो शेडेड पोर्शन जो है वो y एक्सिस के साथ लगा हुआ है। दैट मींस इंटीग्रेशन तो a टू b x dy होगा, x dy होगा। बट यहां पर देखो ये शेडेड पोर्शन जो है वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ गया ना, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, दैट मींस आपको क्या यूज करना है, माइनस साइन यूज करना है। हो गया, याद रहेगा आपको ये। सो दैट मीन्स these two concepts are very important, and regarding these concepts you will get different types of questions from this JEE main and advanced level exams. Okay, these two concepts are very important. Just you can write the figure and just you can write the expressions also. Okay, area equals to area है, ये भी एरिया होता है, बट आपको क्या यूज करना है, सामने माइनस साइन यूज करना है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर सपोज माइनस साइन बाहर आ गया, a टू b है, ये क्या है y dx है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी है, सामने अगर माइनस साइन है किसी भी इंटीग्रेशन साइन के ऊपर, तो आप लिमिट जो है चेंज कर सकते हैं, वो b टू a हो जाएगा, है कि नहीं। यहां पर भी सेम एरिया क्या होगा, b टू a x dy हो जाएगा, क्योंकि सामने माइनस साइन आ गया है। आप कर सकते हैं, लिमिट को चेंज कर सकते हैं, माइनस साइन को हटा के आप लिमिट को चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात एक ही होता है, ठीक है। हो गया। अच्छा, अब जो है हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, find the area of the parabola y equals to x square plus 1, x square plus 1, find the area of y equals to x square plus 1 and x plus y and x plus y equals to 1। दैट मीन्स एक एरिया आपको निकालना है जो बाउंडेड है, ये एक कर्व और एक लाइन से बाउंडेड है। अब फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद ही हम लोग को क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि ये क्या सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो ये फर्स्ट वाला जो कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, किस टाइप का कर्व होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, if you have two variables in one equation x and y, किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, तब ये पैराबोलिक इक्वेशन होता है। रिमेंबर दिस वर्ड, पैराबोला का इक्वेशन होता है, दो वेरिएबल यूज होता है एक्स एंड वाई, किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर यहां पर स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ये देखो यहां पर
एक्स और वाई दो वेरिएबल तो यूज हो गया, बट एक्स के ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन्स ये पैराबोलिक इक्वेशन होगा, ये कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद पैराबोला के इक्वेशन, वर्टेक्स जानते हो 0,0 के लिए 4 केस होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है। जब वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स जब 0,0 हो तब 4 केसेस निकलता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका क्या होगा, ये होगा ऐसे, है कि नहीं। अब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, ये ऐसे होगा, ये क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे होगा। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ये कैसे होगा, ये नीचे की तरफ होगा। आप लोग ये जानते हैं, क्लास 11 पे हम लोगों ने पढ़ा है ये सब। ये तो वर्टेक्स 0,0 केस के लिए है। अब सपोज वर्टेक्स जो है अल्फा कोमा बीटा, दैट मींस 0,0 नहीं है, तो क्या होता है। तो जैसे ये फर्स्ट केस क्या होता है, यहाँ पर ये वर्टेक्स का डेविएशन कितना हुआ है, अल्फा एंड बीटा, दैट मींस वाई कोऑर्डिनेट का डेविएशन बीटा हुआ है और एक्स कोऑर्डिनेट का डेविएशन कितना हुआ है, अल्फा हुआ है। दैट मींस y के जगह y माइनस बीटा होल स्क्वायर और 4ax के जगह x माइनस अल्फा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4ax माइनस अल्फा। ये केस क्या हो जाएगा, जहां पर आपको y दिखे y माइनस बीटा लिखना है, और जहां पर आपको y दिखे x दिखे x माइनस अल्फा लिखना है। दैट मींस दिस पार्ट एंड x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका फिगर क्या होगा, इसका फिगर देखो, 0,0 तो होगा नहीं, तो सपोज ऐसा कुछ होगा, यहां पर वर्टेक्स होगा जो 0,0 को टच नहीं करेगा, ये अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है। यहां पर ये इमेजिनरी एक्स एक्सिस, इमेजिनरी वाई एक्सिस एक ड्रॉ कर दो। इसका फिगर क्या होगा, उल्टा तरफ होगा, निगेटिव है ना, ऐसा होगा। यहां पर वर्टेक्स होगा अल्फा कोमा बीटा, है कि नहीं। तो यहां पर ये और ये एक्सिस होता है। इसका फिगर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, सपोज ऐसा हो सकता है। ये अल्फा कोमा बीटा है जो 0,0 को टच नहीं कर रहा है, तो ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। इसका फिगर क्या होगा, ऐसा हो सकता है, सॉरी टच हो गया, वो होने से भी कुछ नहीं होता है, ऐसा हो सकता है अल्फा कोमा बीटा, ये इमेजिनरी वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्स एक्सिस। फोर्थ का फिगर ऐसा होता है। दैट मींस फर्स्ट 4 properties for the vertex 0,0 and second 4 properties for the alpha comma beta vertex. ओके, तो 8 केसेस होता है टोटल पैराबोलिक इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा, यहां पर सपोज हम लोग को इक्वेशन देख के कैसे समझ में आएगा इसका वर्टेक्स 0,0 है और इसका वर्टेक्स जो है अल्फा कोमा बीटा है, कैसे समझ में आएगा। मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बोल देता हूं। अगर कोई भी इक्वेशन हो, दिया गया क्वेश्चन आपको, उस इक्वेशन में अगर 2 टर्म रहे, ओनली 2 टर्म्स, देन द वर्टेक्स विल बी 0,0। अगर 3 टर्म रहे, 3 टर्म्स, 3 या फिर 3 से ज्यादा, दैट मीन्स 2 से ज्यादा टर्म, दैट मीन्स ये क्या होता है, वर्टेक्स अल्फा कोमा बीटा का होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो पैराबोलिक इक्वेशन है, ये तो कंफर्म हो गया है। अब कंडीशन आ गया, द वर्टेक्स वेदर इट इज 0,0 और अल्फा कोमा बीटा, देयर इज अ क्वेश्चन ना। हियर यू हैव द 3 टर्म्स, जस्ट अवॉइड द इक्वल साइन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3, 3 टर्म है, दैट मीन्स 2 से ज्यादा हो गया, दैट मीन्स इसका वर्टेक्स जो है, दैट मीन्स ये जो गिवन क्वेश्चन है ये पैराबोलिक इक्वेशन है, दैट मींस उसका ये 3 टर्म है, 2 से ज्यादा टर्म है, दैट मींस उसका वर्टेक्स जो है अल्फा कोमा बीटा ही होगा, है कि नहीं। ये कंफर्म हो गया है। अब आ गया है फिगर ड्रॉ करने का टाइम, ठीक है। तो ये जो है ये सब आप लोग लिख लीजिए, है आप लोग को होगा शायद, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पता होगा, है। तो ये 11th स्टडीज का 11th क्लास का है पैराबोलिक कोनिक सेक्शन पार्ट, वहां से आपको मिल जाएगा। तो यहां पर
पॉज करके ये सब पूरा नोट जो है पूरा लिख लो, ठीक है, जो जो मैंने लिखाया है वो लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ गिवन कार्ड्स। यहां पर देखो, अगर हम लोग उसको ये गिवन लिख के, गिवन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, दैट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4। आपको फॉर्म में तो सजाना पड़ेगा यहाँ पर, है कि नहीं। दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 1। तो वर्टेक्स यहाँ पर क्या मिल गया, वर्टेक्स इक्वल्स टू 0,1 मिल गया। फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट नॉर्मल अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ये इक्वेशन रहे, ठीक है, नॉर्मल पैराबोलिक इक्वेशन है, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, तब इसका फोकस पॉइंट होता है 0,a, ये है फोकस पॉइंट। तो अगर यहाँ पर ये जब वर्टेक्स 0, 0 हो, वर्टेक्स 0,0, अब वर्टेक्स तो यहाँ पर 0, 0 नहीं है, हम लोग का जो क्वेश्चन है यहाँ पर तो अल्फा कमा बीटा है, तो यहाँ पर 0 प्लस अल्फा a प्लस बीटा लिख दो, बस 0 के साथ अल्फा प्लस कर दो, a के साथ बीटा प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपका न्यू फोकस पॉइंट, है कि नहीं। तो दैट मीन्स इस केस में 0 प्लस अल्फा, 0 प्लस अल्फा, अल्फा मतलब 0, बीटा क्या है, बीटा 1 प्लस a कितना है 1/4, a कितना है 1/4, है कि नहीं। सो दैट मीन्स 0 5/4 ये होता है फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकस पॉइंट हो गया। फिर जो लाइन, जो सेकंड इक्वेशन दिया गया है, एक काम करो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सो ये इसको अगर मैं इंटरसेप्टिंग फॉर्म में सजाऊं, x/1 प्लस y/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हम लोग देखो, अगर इंटरसेप्टिंग फॉर्म में सजाओ, इंटरसेप्टिंग फॉर्म, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स निकलता है, एक है 1,0 एंड 0,1। जैसे x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 होता है ना, वहां से 2 पॉइंट निकलता है, a,0, 0,b, है कि नहीं। तो यहां पर भी 2 पॉइंट निकल गया, 1,0 एंड 0,1। इसको इक्वेशन नंबर 2 देखो। तो यहां पर देखो, जो पैराबोला इक्वेशन है वहां से हम लोगों ने वर्टेक्स फोकस निकाल लिए हैं, और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, उस लाइन से भी हम लोगों ने 2 पॉइंट निकाल लिया है, जो 2 पॉइंट से ये लाइन जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सब जितना सारा पॉइंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड था निकाल लिया। अब जो है हम लोग को देखना है, जो 2 इक्वेशन दिया गया ना, 2 इक्वेशन के बीच कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके देखो कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता है कि नहीं। सो दैट मीन्स ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर x प्लस वाई, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो ये जो y का वैल्यू है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर बिठा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x कॉमन, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। x का 2 वैल्यू मिल गया, तो x का 2 वैल्यू के लिए y का भी 2 वैल्यू मिलेगा, तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1 एक होता है, सिंस x इक्वल्स टू 0, एंड y इक्वल्स टू माइनस 2 होता है, सिंस x इक्वल्स टू माइनस 1। सो पॉइंट्स क्या क्या मिला, 0,1 एक पॉइंट, और एक होता है, एक क्या होता है, ये 2 हो जाता है, -1,2, -1,2। दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 मिल गया। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, वर्टेक्स पता है, फोकस पता है, लाइन का जो पॉइंट्स हैं वो भी पता है। अब हम लोग जो है फिगर में आएंगे, ठीक है। तो फिगर में देखो, ये एक्सिस, तो यहां पर वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स क्या था 0,1, दैट मीन्स, और फोकस क्या था 0,5/4, और ये है 0,1। दैट मीन्स सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस होगा ये, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर लाइन इक्वेशन में 2 पॉइंट है, 1,0, 0,1। तो 1,0 सपोज यहां पर है 1,0, और 0,1 तो ऑलरेडी
लिखा हुआ है। इसमें से 2 पॉइंट अगर ज्वाइन करें हम लोग, ऐसा एक फिगर मिलता है कि नहीं? ऐसा फिगर मिलता है। तो यहां पर देखो, ये जो ये है आप लोगों का बाउंडेड रीजन। कर्व और लाइन के अंदर जो बाउंडेड पार्ट मिला, जो क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड सरफेस मिल गया, दैट मींस ये पार्ट होता है। दैट मींस ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों को मिला है, क्या है? -1,2। नेगेटिव साइड में है तो ऑब्वियसली -1,2। ये तो 0,1 ऑलरेडी है ही हम लोग के पास। अब जो है इस पोर्शन के एरिया हम लोग को निकालना है। ये जो पोर्शन है इसके एरिया हम लोग को निकालना है। सिमेट्रिकल अबाउट क्या करेंगे? एक्स एक्सिस ही करेंगे। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस ही करेंगे। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस करेंगे तो यहां पर देखो एक परपेंडिकुलर, यहां पर देखो ये जो शेडेड पोर्शन है ना ही एक्स एक्सिस के साथ चिपका हुआ है, ना ही वाई एक्सिस के साथ चिपका हुआ है। तो यहां पर 2 केसेस बनता है। यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग पोजीशन में है ना ही एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है, ना ही वाई एक्सिस के साथ लगा हुआ है। देखो शेडेड पोर्शन जो है वाई एक्सिस के साथ भी नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ भी नहीं है। तो आप लोग को जो भी यहाँ पर लगे आप लोग कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करना इजी होता है। तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये -1,0 होता है, ये तो 0 है। ठीक है, तो अब मुझे एरिया किसका निकालना है? ये शेडेड पोर्शन जो है। तो एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम, ये जो पॉइंट है इसका नाम सी, ये जो है इसको, यहां पर एक कोई भी एक पॉइंट लो, इसको डी, और यहां पर एक कोई भी एक पॉइंट ई है कि नहीं? तो एरिया ऑफ मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ, देखो ए डी बी ई ए, इस चीज का एरिया निकालना है। ए डी बी ई ए। तो ये जो हैंगिंग पोजीशन में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया तो किसी भी एक्सिस के साथ लगा हुआ नहीं है। तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? कोई भी हैंगिंग पोजीशन का फिगर आपको मिल जाए तो आप लोगों को यही प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या होता है देखो, पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये इसको, ये पूरा पार्ट का एरिया निकालेंगे। ये पूरा पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो यहां पर देखो ये तो 0 है, ये तो 0,0 पॉइंट है ना। दैट मीन्स यहां पर देखो एक्स का वैल्यू, ये शेडेड पोर्शन, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहां पर एक्स का लोएस्ट वैल्यू क्या है? -1। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 0। दैट मीन्स -1 to 0। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ट्रेपेजियम की तरह, इसमें ये जो पोर्शन है इसमें कौन सा कार्व यूज हो रहा है? इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2? आई थिंक इक्वेशन नंबर 1 जो लाइन वाला इक्वेशन है वो। ठीक है, तो लाइन, दैट मीन्स ये वाला पार्ट यूज हो रहा है कि नहीं? तो ये वाला पार्ट यूज हो रहा है, दैट मीन्स इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को यूज करना है। दैट मीन्स ये इक्वेशन। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हैं, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होता है? y dx माइनस, ये हो गया। अब इससे माइनस करेंगे कौन सा? ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पोर्शन, इस पोर्शन को माइनस कर देते हैं, पूरा का निकालेंगे। फिर उसके बाद ये गैप पोर्शन, जो सफेद, जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको माइनस कर देते हैं। ये पोर्शन, तो ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है उसमें भी तो लिमिट -1 to 0 ही है कि नहीं? बट यहां पर ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है उसमें बाउंडेड, ये व्हाइट कलर का पार्ट किससे बाउंडेड है? ये देखो कार्व से बाउंडेड है ना, देखो तो इस कार्व से बाउंडेड है। दैट मीन्स इस पोर्शन में हम लोग को लाइन का इक्वेशन नहीं, इस पोर्शन में हम लोग को कार्व का इक्वेशन यूज करना है। दैट मीन्स इट इज, ये एक काम करो y1 दे दो, इसको y2 dx दे दो। तो दैट मीन्स -1 to 0, y1 मतलब क्या है? 1 - x dx माइनस -1 to 0, यहां पर y2 मतलब क्या है? x² + 1 dx। बस इसका आंसर भी निकल, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। सो यहां पर होगा x - x²/2, लिमिट क्या होगा? -1 to 0 माइनस x³ प्लस x, इसका क्या होगा? -1 to 0। तो बेटा 0 तो पुट करके क्या करें, यहां पर 0 तो जरूरत नहीं है। -1 - -1 होल स्क्वायर बाई 2,
फिर माइनस, यहां पर भी 0 पुट करके क्या करें, तो यहां पर ये माइनस है ना, माइनस करके निकाल रहे हो, दैट मीन्स सामने, इसके सामने भी एक क्या होगा, माइनस साइन रहेगा, है कि नहीं। 0 वाला तो पार्ट होगा नहीं, उसके बाद तो फॉर्मूला एस फॉर्मूला तो माइनस साइन रहेगा, फिर उसके बाद -1 बिठाना है आपको, तो यहाँ पर ये है, फिर माइनस, ये माइनस आ गया। अब जो है सेम केस यहाँ पर देखो, माइनस केस तो एक आएगा, फिर उसके बाद -1 होल क्यूब बाई 3 प्लस -1, है कि नहीं, ठीक है। अब जो है कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर -1 -हाफ माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, यहाँ पर -1/3 -1, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है 3/2 -3/2, ये माइनस मिलके 3/2, फिर प्लस माइनस 4/3, है कि नहीं, 4/3 होगा ना। सो दैट मीन्स 6 9 -8, that means 2 3s are 6, 3 3s are 9 and 4 2s are 8. Okay, so that means 1/6 square unit is the answer. That means yes, 1/6 square unit मिला एरिया किसका, ये शेडेड पोर्शन का एरिया, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन का एरिया क्या मिला, 1/6 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया तो कभी निगेटिव नहीं निकल सकता है, याद रखना इसको, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, find the area bounded by the curves। दो कर्व्स दिया गया है, एक है y इक्वल्स टू √x, y इक्वल्स टू √x, एंड अनदर कर्व y इक्वल्स टू √4 - 3x, y इक्वल्स टू √4 - 3x and x equals to 0 and sorry y equals to 0 and y equals to 0। आपको एरिया निकालना है, एक कर्व, दो कर्व और ये y equals to 0, y equals to 0 तो मतलब क्या है, x एक्सिस, है कि नहीं। तो यहां पर गिवन लिखो, गिवन y equals to √x, अब रूट लेके क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, y square equals to x, इक्वेशन नंबर 1 दो। सेकंड कार्व भी यहां पर y इक्वल्स टू √4 - 3x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - 3x, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये किसका इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने बोला था दो वेरिएबल यूज होगा, किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन्स पैराबोला इक्वेशन है, उसके ऊपर दो टर्म है, दैट मीन्स वर्टेक्स तो 0 0 ही होगा यहाँ पर, दैट इज 1/4 into x, that means y square equals to 4ax, symmetrical about positive x axis, symmetrical about positive x, ठीक है। तो यहां पर वर्टेक्स तो 0 0 है, वर्टेक्स 0 0 है, और फोकस पॉइंट क्या होगा, a, 0 फॉर्मूला, है कि नहीं। तो a क्या होता है 1/4, तो 1/4, 0 होता है, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला में देखो, ये भी पैराबोलिक इक्वेशन ही है, किसी भी एक वेरिएबल, दैट मींस y के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, दैट मींस यहाँ पर ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। बट 3 टर्म है, तो मैंने बोला था 2 से ज्यादा टर्म होने से वर्टेक्स जो है वो अल्फा, बीटा होता है, 0, 0 नहीं होता है, दैट मीन्स यहाँ पर, और y के ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन्स अल्फा, बीटा केस तो होगा, 4 केसेस होता है, कौन सा केसेस यूज करना है, फर्स्ट 2, पहला जो 2 केसेस होता है वो यूज करना है, दैट मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लेने से ऐसा होता है, देखिए देखो 3x - 4, दैट इज y - 0 होल स्क्वायर
माइनस कॉमन 4 इंटू 1/4, और यहां पर 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4/3। दैट मीन्स y माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 x माइनस 4/3। तो ये कैसा टाइप का इक्वेशन बन गया? देखो तो y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a x माइनस अल्फा, है कि नहीं? दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव, सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव x एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव x एक्सिस, है कि नहीं? तो यहां पर वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स क्या होगा? 4/3 अल्फा कोमा बीटा है ना, तो अल्फा मतलब 4/3, बीटा मतलब 0। फोकस पॉइंट क्या होगा? फोकस पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, दैट मीन्स माइनस ए प्लस अल्फा 0 प्लस बीटा, है कि नहीं? ऐसा होता है फिगर। सो दैट मीन्स माइनस ए प्लस अल्फा 0 प्लस बीटा। यहां पर ए तो क्या है? यहां पर ए क्या है? ए क्या है? 3/4। तो माइनस ए, दैट इज माइनस 3/4 प्लस अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है? अल्फा क्या होता है? 4/3 प्लस 4/3 कोमा 0 प्लस बीटा, बीटा क्या है यहां पर? 0। दैट मीन्स इसका आंसर अगर निकालेंगे क्या होता है? तो ये होता है 12, कैल्सियम 12 होता है, दैट मीन्स 3 माइनस 9 प्लस -9 + 12 0। सो क्या होता है? प्लस 3/12 प्लस 3/12 प्लस 3/12, दैट इज 1/4 प्लस 1/4 0, 1/4 0। तो देखो दो लाइन है यहाँ पर, दो कार्ब्स हैं। पहला कार्ब का भी हम लोगों ने वर्टेक्स फोकस निकाल लिए, सेकंड कार्ब जो है उसका भी हम लोगों ने वर्टेक्स फोकस निकाल लिया। अब क्या है? सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करके देखना है यहाँ पर कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1 क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये क्या है? a। दोनों की इक्वल लिख सकता है ना, x इक्वल्स टू 4 - 3x लिख सकता है ना। देखो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल्स टू x, यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 4 - 3x, तो दोनों ही तो y स्क्वायर के वैल्यू, तो दोनों को कंपेयरिंग मेथड से क्या करते हैं? इक्वल लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स यहाँ पर 4x इक्वल्स टू 4, दैट इज x इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 हो गया, सो y इक्वल्स टू, यहाँ पर x का वैल्यू 1 बिठाने से क्या होता है? y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 निकलता है क्या? सो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या क्या मिला? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या मिला? एक है 1,1 और दूसरा तो 1,-1, ये दो होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अब सब पॉइंट्स मिल गया है, अब आप लोग को क्या करना है? आप लोग को अभी फिगर ड्रॉ करना है। फिगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला जो कार्व है उसमें वर्टेक्स क्या था और फोकस क्या था? वर्टेक्स तो 0 0 था और फोकस क्या था? अच्छा, y स्क्वायर इक्वल्स टू, तो मिटा दिया मैंने, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x था ना, तो दैट मीन्स वर्टेक्स तो 0 0 है और इधर a, 0 दैट इज 1/4, 0 है कि नहीं? ये था शायद। सो दैट मीन्स सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसा होता है। ऐसा होता है फर्स्ट वाले का फिगर। दैट मीन्स ये किसका फिगर है? y स्क्वायर इक्वल्स टू x का। ठीक है, क्वेश्चन तो यही था, y स्क्वायर इक्वल्स टू x ही था। यस। सेकंड कार्व जो है, सेकंड कार्व में वर्टेक्स क्या है? 4/3, 0। 4/3 दैट मीन्स 1 से थोड़ा ज्यादा होगा,
ये होता है 4/3 3, 0 और फोकस क्या है 1/4, 0 दैट मीन्स 1/4 1 से कम होता है दैट मीन्स यहाँ पर होगा सॉरी 1/4, 0 जस्ट आपको ये फोकस पॉइंट जो है आपको डायरेक्शन निकालने के लिए जरूरत होता है और सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है ये माइनस साइन है निगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ जाएगा दैट मीन्स ऐसा होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या क्या मिला ये 2 मिला, एक होता है 1,1 और ये होता है 1,-1 तो शेडेड पोर्शन क्या मिला बाउंडेड पार्ट ये और ये पूरा पार्ट। तो एक काम करते हैं हम लोग इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का आंसर मिल जाएगा। दोनों का अलग अलग निकालने का कोई फायदा नहीं, दोनों का एरिया तो सेम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो लेंथ तो सेम ही है, ये लेंथ भी सेम है, ये लेंथ भी सेम है, कोऑर्डिनेट तो सेम, यहाँ पर देखो 1 और -1 सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस का डिफरेंस है। प्लस माइनस कोऑर्डिनेट में क्या डिनोट करता है डायरेक्शन डिनोट करता है, लेंथ तो सेम होता है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है और फॉर्चुनेटली दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज लाइंग ऑन द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन के ऊपर जो है लाई करता है। जब कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट शेडेड पोर्शन के ऊपर लाई करता है तो आपको शेडेड पोर्शन ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है एक ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट मिला जो एक्स एक्सिस को कट करता है उसमें कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0 सो दैट मीन्स ये शेडेड पोर्शन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है कि नहीं। तो अभी जो एरिया निकालेंगे हम लोग यहाँ पर 2 पार्ट में मिलेगा, आप नाम दीजिए। यहाँ पर O ये होता है A, ये B, ये C, ये जो पोर्शन है ठीक है ऐसे नाम देते हैं। सो हियर एरिया ऑफ किसका निकालना है OBCO इसका निकालना है। तो 2 पार्ट का है ये, एक होता है पहला पार्ट यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इंटरवल क्या है 0 से लेके 1 तक, 0 to 1 y1 dx, फिर प्लस 1 से लेके कहां तक 4/3 तक, देखो 1 से लेके 4/3, 1 से लेके 4/3 ये y2 dx। सो 0 to 1 कौन सा कर्व यूज हो रहा है, देखो 0 to 1 में ये जो छोटा वाला पार्ट है इसमें ये वाला कर्व यूज हो रहा है ना, दैट मीन्स ये छोटा वाला शेडेड रीजन जो है वो इस कर्व से बाउंडेड है। दैट मीन्स इस कर्व का इक्वेशन क्या है, इस कर्व का इक्वेशन y² = x। दैट मीन्स यहां पर y1 के जगह में आपको क्या लिखना है √x dx प्लस 1 से लेके 4/3 सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक, ये तो ये कर्व साफ साफ दिखाई जाए। तो ये कर्व का इक्वेशन क्या है ये, दैट मीन्स √4 - 3x dx है कि नहीं। बस आप लोगों को तो अभी एरिया निकालना है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। हाफ दैट मीन्स x⁴ 3/2 by 3/2 हो गया 0 to 1 और इधर ये भी तो रूट का ही पार्ट होता है 4 - 3x होल टू दी पावर 3/2 by 3/2। बट यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट एक है -3, वो दैट मीन्स इंटीग्रेशन में ये x का कोफिशिएंट जो है वो बाई में आता है, तो डिवाइड बाय -3 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सो लिमिट क्या है 1 to 4/3, तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आपको आंसर आ जाएगा है कि नहीं। इसको मुझे नहीं करना है, आपको करना है ये सब, ठीक है ओके। ये सब जनरली मेन एडवांस का क्वेश्चन है ओके। ये क्वेश्चन एडवांस का है, ये क्वेश्चन एडवांस का है 2016 और 17 ऐसा कुछ है, ठीक है। पहला वाला जो है मेन का है, फर्स्ट वाला जो किया है हम लोगों ने वो मेन का है, ठीक है ठीक है। फिर थर्ड एक क्वेश्चन लिखो x² + y² = 8x, दैट मीन्स फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ऐसे लिखना है। फाइंड द एरिया, ये होगा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। आओ थर्ड क्वेश्चन में आओ, देखते हैं क्या यहां पर मिलता है हम लोग को। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x square plus y square equals to 8x। x square plus y square equals to 8x, फिर y square equals to 4x, y square equals to 4x and x axis। ओके, सो तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड अभी दो वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ गया, दैट मींस ये सर्कल का इक्वेशन है। दोनों वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर भी है वाई के ऊपर भी है, दैट मींस ये सर्कल का इक्वेशन होता है। ओके, और यहाँ पर तीन टर्म है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो और सेकंड है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये तो पैराबोला का ही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 4, दैट इज बी स्क्वायर का पार्ट आ रहा है यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ही उस साइड में भी एक 4 स्क्वायर दे देते हैं क्योंकि 4 स्क्वायर तो हम लोगों ने लिया है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर और इधर 4 स्क्वायर। बस यहाँ पर सेंटर क्या आ गया, 4,0 आ गया, सर्कल का रेडियस क्या आ गया, इक्वल्स टू 4 आ गया। यहां पर तो ये तो क्या है, वर्टेक्स तो यहाँ पर 0 0 है और फोकस पॉइंट तो यहाँ पर क्या है 1,0 है। इट मीन्स 4 इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इंटू एक्स है ना। ओके, सो दैट मीन्स यहां पर अगर फिगर आप लोग ड्रॉ करें, सर्कल का सेंटर क्या है 4,0, 4,0, रेडियस क्या है 4 है, दैट मीन्स ये लेंथ तो 4 है ना, दैट मीन्स सर्कल जो है इस पोर्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स ओके, ये होता है सर्कल। और पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दैट मीन्स यहां पर उसके बाद एक पार्ट करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके देखना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं। फिगर ड्रॉ करने से पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको निकालना है कि नहीं। तो लिखो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो यहां पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह में 4x बिठा सकते हैं ना, 4x इक्वल्स टू 8x, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x इक्वल्स टू 0, दैट इज x कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0 एक है और x इक्वल्स टू 4 एक है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर पैराबोला जो है 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर देखो, अगर यहां पर x का वैल्यू 0 हो, y का वैल्यू क्या मिलता है, y का वैल्यू भी 0 मिलता है। x का वैल्यू 4 हो तो y का वैल्यू क्या मिलता है, प्लस माइनस 4 है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है फिगर। ये जो पॉइंट है ये 4,4 होता है, ये जो पॉइंट है ये 4,-4 होता है और ये पॉइंट जो है वो 0,0 होता है। बस ठीक है। अब जो है आपको बाउंडेड पार्ट निकालना है, दैट मीन्स ये होता है बाउंडेड। ठीक है, तो ये भी तो बाउंडेड है। ये काम करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो उससे पहले जो क्वेश्चन है आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आंसर निकाल के
2 मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले जो क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, ऊपर का हाफ किया है हम लोगों ने, तो पूरा निकालने के लिए तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर का ये पार्ट निकालेंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये तो 4,0 ही है, कोई बात नहीं है। अब जो है इंटीग्रेशन यहां पर हम लोग करेंगे। यहां पर एरिया का नाम दे दो ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पर एरिया किसका निकालना है आपको, फाइनली ओ सी ए डी ओ, मतलब शेडेड पोर्शन का। तो इसका निकालने के लिए देखो हम लोग 2 पार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, पूरा जो पार्ट है इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, 0 to 4। आई थिंक दिस पार्ट इज बाउंडेड बाय द सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये है। तो सर्कल का इक्वेशन में सिमेट्रिकल अबाउट तो y एक्सिस है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है। सो दैट मीन्स यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया x का वैल्यू 8x माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट dx, सर्कल का। अब उससे माइनस करना है 0 to 4, ये वाला पार्ट, ये गैप वाला पार्ट। तो गैप वाला पार्ट जो है किससे बाउंडेड है, पैराबोला से बाउंडेड है। दैट मीन्स रूट ओवर 4x dx। दैट मीन्स 0 to 4, इसको क्या करना है, माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 8x उधर ऐसे रखना है dx। और ये जो है इसको क्या करना है, 4 रूट के बाहर लेके आ जाओ, 2 आ जाएगा। और इधर 0 to 4 रूट x, दैट मीन्स x to the power 3/2 by 3/2, बस। अब इसका करना है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करते हैं, 0 to 4 रूट माइनस रहने दो एक्स स्क्वायर माइनस 8, दैट मीन्स 2 into x into 4 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर dx माइनस 2 into 2/3 4 to the power 3/2, है कि नहीं। तो क्या होगा, ये हम लोग यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। 0 to 4 रूट के अंदर माइनस है, फिर माइनस ये x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर dx, और ये हो जाता है माइनस 4/3, और 4 को हम लोग देखो 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो 0 to 4, एक काम करते, रूट के अंदर माइनस तो हम लोग तो नहीं रख सकते हैं, एक काम करते 4 स्क्वायर को सामने और x माइनस 4 होल स्क्वायर को बाद में लेके चले जाते हैं उधर, ये 4/3 और इधर 2 क्यूब रह जाएगा, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला आप लोग को पता है कि नहीं, इंटीग्रेशन रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, x/2 रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, है कि नहीं। ये फॉर्मूला थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। तो x/2 दैट मीन्स x माइनस 4/2, एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 2 दैट मीन्स 16/2 साइन इनवर्स x/a, x/a दैट मीन्स x माइनस 4/4। पूरा लिमिट क्या है, 0 to 4, और ये हो जाएगा 32/3, ठीक है। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन करो, लिमिट बिठा दो, लिमिट बिठा दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट बिठा के आंसर निकाल लो।
तो यहाँ पर 4 बिठाने से अपर लिमिट, ये पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 0। ओके, 4 बिठाने से, और 0 बिठाने से क्या होगा, -2। 0 बिठाने से यहाँ पर ये 0 बिठाने से भी ये एक्सप्रेशन जो है 0 हो जाता है, क्योंकि 0 - 4, ठीक है। यहाँ पर 16, ये 0 बिठाने से देखो 4 स्क्वायर 16 - 16 0 हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी 0, ये -16/2, दैट मीन्स 8, और ये साइन इनवर्स -1। ओके, ठीक है, और -32/3 है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसको, 0 बिठाने से 4 बिठाने से क्या होता है, ये 0 हो जाता है 0 बिठाने से, और इसमें 4 बिठाने से क्या होता है, ये 8 होगा, 8, ठीक है। तो क्या होता है, 8 साइन इनवर्स 0 मतलब π/2 -8, ये साइन इनवर्स समझ लो, साइन इनवर्स 1, दैट मीन्स 1 मतलब क्या होता है, साइन 0, तो यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर 8 × π/2 -32/3, so that means 4π -32/3 square unit is the final answer। ठीक है, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, find the area bounded by the curves, bounded by the curve y equals to x - 1, x - 2, x - 3 and x equals to 0, x equals to 3। यही है क्वेश्चन शायद, यस, ठीक है। दैट मीन्स x equals to 0, x equals to 3 तो लाइंस है, और ये कर्व होता है, तो सब मिलके एक बाउंडेड पोर्शन बनाएगा। उस बाउंडेड पोर्शन का आपको एरिया निकाल के दिखाना है कि नहीं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या निकल रहा है, यहाँ पर इस कर्व में x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बोलो, x का वैल्यू अगर मैं 1 से छोटा चूज करूं, x का वैल्यू सपोज यहाँ पर क्या क्या भी मिल रहा है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप का अगर कार्व हुई है तो इरेगुलर कार्व होता है ना, इरेगुलर कार्व होता है, इसका कोई फिक्स्ड ये फिगर तो नहीं होता है, इसको आपको ये वैल्यू बिठा के ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पर x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 है कि नहीं। अच्छा, आप एक काम करिए, इस कार्व में x का वैल्यू 1 से छोटा चूज करके देखो तो 0 क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि x का वैल्यू 0 तक ही लोएस्ट है, 0 क्रॉस नहीं कर सकते। तो 1 से छोटा 0.5 यहां पर बिठाओ, 0.5 - 1 नेगेटिव वैल्यू, 0.5 नेगेटिव, 0.5 - 3 नेगेटिव, दैट मींस तीनों नेगेटिव, तो तीनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। दैट मींस x का वैल्यू अगर मैं 1 से छोटा चूज करूं तो यहां पर कर्व जो है ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मींस y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। दैट मींस देखो ये है 0, दैट मींस 0,0, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। तीनों वैल्यू है ना, x इक्वल्स टू 1, 2, 3, और यहाँ पर 0, 0 लिया गया क्योंकि लोएस्ट लिमिट 0 में दिया गया है कि नहीं, तो 0 तो कंसीडर करना पड़ेगा। अब जो है 1 से छोटा चूज कर रहे हैं जब, तब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है y का, तो y का नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मींस ये कर्व ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, y का नेगेटिव वैल्यू।
है कि नहीं। y का वैल्यू तो 0 तो नहीं हो सकता है ना, 0 तो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर ये सपोज x का वैल्यू 0 भी पुट कर दे तभी भी y का वैल्यू 0 नहीं आएगा। दैट मींस ये कार्व कभी भी 0 में टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर 0 में टच कर दिया तो यहाँ पर y का वैल्यू भी 0 आ गया। तो y का वैल्यू 0 तो कभी नहीं आ सकता है यहाँ से। x का वैल्यू 0 भी पुट कर दो, y का वैल्यू 0 नहीं आएगा। दैट मींस कार्व जो है ऐसा ही कुछ आएगा, आसपास 0 में टच नहीं करेगा, 0 के आसपास टच करेगा। तो ये हो गया नीचे की तरफ है। अब 1 से ग्रेटर वैल्यू चूज करो, 1 से ग्रेटर 1.5 चूज करने से ये पॉजिटिव आ जाता है, ये निगेटिव आ जाता है, ये भी निगेटिव आ जाता है। दैट मींस ये पॉजिटिव, ये निगेटिव 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 प्लस, तो ऑल प्लस होता है ना। दैट मींस ठीक है। अब जब 2 में तो आकर टच तो करेगा ही, क्योंकि देखो अगर यहां पर x का वैल्यू 2 पुट कर दें, x का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू देखो 0 आ गया ना, तो दैट मींस आ गया। सो फिर 2 से छोटा और 2 से ग्रेटर चूज करना है, 2 से ग्रेटर चूज करना है। दैट मींस 2.5 ये तो ऑब्वियसली होगा, ग्रेटर ही होगा। 2.5 ये भी ग्रेटर होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। दैट मींस ये नीचे की तरफ आएगा। और 3 में टच करेगा क्या, ऑब्वियसली टच करेगा। देखो यहाँ पर अब 3 से ग्रेटर चूज करना है। दैट मींस सब देखो पॉजिटिव ही आ रहा है। दैट मींस ये ऐसे चलता रहेगा, 3 से ग्रेटर चलता रहेगा। दैट मींस यहाँ पर शेडेड पोर्शन क्या क्या आ रहा है, ये और ये, ठीक है। दैट मींस 0 और 3 के बीच ये सिर्फ 3 शेडेड पोर्शंस आ रहा है। तो यहां पर अगर y इक्वल्स टू ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 x माइनस 3 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इधर आ जाएगा x माइनस 3 y इक्वल्स टू, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x फिर प्लस 2x माइनस 6 y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। ये होता है आपका इक्वेशन नंबर 1। दैट मींस मेन कार्व जो है ये होता है। ये रख के हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये जो एरिया है कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है, 0 to 1 में 1 है, ठीक है। तो 0 to 1 में कार्व तो यही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 dx प्लस फिर 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 dx फिर 2 to 3 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 dx। तो कौन सी इंटरवल में नीचे की तरफ आया था, 0 to 1 इंटरवल में सामने माइनस 2, 2 to 3 इंटरवल में माइनस 2 सामने। बस अब कैलकुलेट कर लो, अब तो नॉर्मल है। इससे सबका कर लो, आएगा। अब तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करना है कि नहीं। तो ये तो माइनस साइन तो रहेगा, यहाँ पर x to the power 4/4 माइनस 6 into x cube by 3 माइनस 7 into x square by 2 माइनस 6x 0 to 1 प्लस x to the power 4/4 माइनस 6 into x cube by 3 माइनस 7 into x square by 2 माइनस 6x 1 2। यहाँ पर माइनस, बात तो एक ही हो गया, x to the power 6 into x cube by 3 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 और माइनस 6x, ये भी क्या होगा 2 to 3। सब में ये वैल्यूज बिठा दो, आंसर मिल जाएगा आपको, है कि नहीं, मिलेगा ना आपको आंसर, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आएगा ना, ये होगा जस्ट एक्स का वैल्यूज बिठा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेन चीज तो ये सब है, ये कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन में सेम ही होता है।
है कि नहीं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y equals to e to the power x and y equals to log x, y equals to log x, y equals to 0, y equals to 2, x equals to 0, x equals to 2. Okay, find the area of the ये लिखो ये कर्व्स गिव है, if the कर्व्स ऐसे लिखो क्वेश्चन, if the कर्व्स these are the कर्व्स, find the area of the remaining part, बाकी पार्ट का निकालना है, शेडेड पोर्शन के अलावा जो बाकी पार्ट होता है उसका निकालना है। ठीक है, दोनों कर्व से जो बाउंडेड है उसका नहीं निकालना है, रिमेनिंग पार्ट का निकालना है आपको। ठीक है, तो रिमेनिंग हो या रिमेनिंग हो, जो भी हो, आपको तो ये फिगर तो ड्रॉ करना ही है। अब e टू दी पावर x का फिगर जो है वो कैसे बनता है, एक यहाँ पर क्या है, y इक्वल्स टू e टू दी पावर x, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या, अच्छा y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करूं, y का वैल्यू क्या निकल रहा है 1, दैट मीन्स x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, y का वैल्यू 1, यहां से ये जो y इक्वल्स टू e टू दी पावर x है, ये कर्व जो है वो पास कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको x का डिफरेंट वैल्यूज आपको चूज करना है, करने के बाद आपको प्लॉट करना है, करने के बाद ऐसे पॉइंट्स मिलेगा, पॉइंट्स मिलने के बाद फिगर जो है कुछ इस तरह आता है। ठीक है, ये y इक्वल्स टू e टू दी पावर x का फिगर है। y इक्वल्स टू e टू दी पावर x का फिगर है कि नहीं। अच्छा, एक लाइन शायद दिया गया था यहाँ पर, ये कौन सा लाइन है, y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो ये सब तो एक्सिस ही है कि नहीं। तो ये तो और क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर y इक्वल्स टू 2 है, तो कर्व में y इक्वल्स टू 2 पुट करने से ये इक्वेशन नंबर 1 और y इक्वल्स टू log x ये दूसरा इक्वेशन नंबर 2 है कि नहीं। तो इसमें अगर y इक्वल्स टू 2 पुट करें तो 2 इक्वल्स टू e टू दी पावर x, दैट इज x इक्वल्स टू log 2, x equals to log 2, that means this point coordinate will be log 2, 2 है कि नहीं। दैट मीन्स यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करूं तो ये जो पॉइंट है क्या होगा, log 2, 0 होगा। ओके ओके, अब जो दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू log x, अच्छा यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करने से, x का वैल्यू 0 पुट करने से y का वैल्यू log 0 अनडिफाइंड होता है, log 0 अनडिफाइंड होता है। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता, x का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स क्या, वो y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। अगर y एक्सिस को ये टच कर लिए तो तभी तो x इक्वल्स टू 0 हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है y एक्सिस को कभी टच यहाँ पर नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पर भी देखो, अगर मैं यहाँ पर सपोज y इक्वल्स टू ये y इक्वल्स टू 0, e टू दी पावर समथिंग, कभी भी उसका वैल्यू जो है, कभी भी यहां पर देखो e के ऊपर पावर जो भी हो, y का वैल्यू कभी यहां पर 0 नहीं हो सकता है। इसलिए देखो ये जो कर्व है y एक्सिस को यहां पर टच नहीं किया है, जब यहां पर ये टच कर लेगा तभी y का वैल्यू 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 तो कभी होगा ही नहीं फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, सो दैट्स व्हाई ये कर्व जो है ये x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट वे। तो यहां पर भी सेम log x में x का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है, log 0 अनडिफाइंड होता है
है कि नहीं। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 0 कब होता है, जब वाई एक्सिस को टच करेगा। तो दैट मीन्स क्या है, ये जो log x कर्व है वो वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये तो कंफर्म है। अब x का वैल्यू 1, log 1 इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। log 1 क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स x का वैल्यू जब 1 हो, y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स यहां पर अगर सपोज 1 है, दैट मीन्स ये जो कर्व है कुछ ऐसे जाएगा कर्व, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। तो ये होता है y इक्वल्स टू log x कर्व, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या, x इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ये जो है a, ये x इक्वल्स टू 2 है। तो x इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स ये जो क्या होता है, x इक्वल्स टू 2 होने से y इक्वल्स टू क्या होता है, log 2 होता है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये 2, log 2 होगा, 2, log 2, और ये पॉइंट क्या होगा, 2, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। सो यहां पर जो है रिमेनिंग पार्ट, दैट मीन्स बीच का पार्ट का नहीं निकालना है आपको, रिमेनिंग पार्ट दैट मीन्स ये जो पार्ट है, कर्व के बाहर जो पार्ट है, ये पार्ट का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि e टू द पावर x और log x दोनों रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, बट दोनों के एरिया जो है वो सेम ही आएगा, दोनों के एरिया जो है सेम ही आएगा। फंक्शन यहाँ पर रेसिप्रोकल्स है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, बट इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम ही आएगा, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के एरिया मिल जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x और log x सब तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। यहाँ पर लिमिट भी सेम दिया गया, y का लिमिट 2, x का लिमिट भी 2, तो क्या फर्क पड़ता है, बाउंड्री भी तो सेम है ना, तो यहाँ पर एरिया भी सेम ही होगा। तो एक काम करते हैं, इसके एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये जो है इसका नाम देते हैं A B C D, है कि नहीं। तो दैट मीन्स हियर एरिया ऑफ A D B C A इक्वल्स टू, पहले हम लोग इसका निकालेंगे, ये जो है इसका निकालेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स 0 टू log 2, इस पार्ट का एरिया, ये जो पार्ट है किससे बाउंडेड है, इस लाइन से बाउंडेड है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2 dx माइनस 0 टू log 2, ये पार्ट किससे बाउंडेड है, कर्व से बाउंडेड है। कौन सा कर्व, e टू द पावर x dx, दैट मीन्स 2 और 2x 0 टू log 2 e टू द पावर x 0 टू log 2, है कि नहीं। सो 2 इंटू log 2 माइनस e टू द पावर log 2 माइनस e टू द पावर 0, है कि नहीं। सो यहां पर आंसर आएगा 2 log 2 तो है ही, माइनस e टू द पावर, e और log कैंसिल होके सिर्फ 2 रहेगा, माइनस 1, तो दैट मीन्स 2 log 2 माइनस 1, ये निकलता है आंसर। e टू द पावर log 2 और log कैंसिल होकर सिर्फ 2 रहेगा, और e टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो आंसर आएगा 2 log 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, सो द टोटल एरिया क्या होता है, टोटल एरिया बस 2 इंटू 2 log 2 माइनस 1, बस ये होता है स्क्वायर यूनिट टोटल एरिया। इसका भी सेम ही एरिया आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसका एरिया भी सेम ही आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है, एक तो ये है, उसके ऊपर लिमिट भी सेम है, यहाँ पर y इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, लिमिट भी तो सेम है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये y एक्सिस के, यहाँ पर ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर y का लिमिट क्या होता है, देखो 0 टू log 2 ही होता है, एक ही चीज है, सेम चीज होता है कि नहीं। तो एरिया सेम आएगा दोनों का, तो इसलिए हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर जो है देखो डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है, 5 क्वेश्चंस आई थिंक, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन, ओके। सो टिल देन आप लोगों को सेफ रहना है, डोंट बी इन्फेक्टेड बाय दिस कोरोना, ओके, सो दैट
I can provide you the solutions from this area bounded regions. That means the application of integration chapter, and you will actually you will be succeeded in the JEE mains and advanced exams as well. So please subscribe, like and share my channel for better experiencing, for better conveniences from my side. Okay, सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन जो है मिलता रहे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, हैं ये किसी न किसी साल आया है ये सब. बहुत सालों से मैंने ये क्वेश्चन जो है कलेक्ट किया है, कलेक्ट करके यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे healthy, and just stay at home and give me a like also. Okay.